We are on the reaction part of the preparation of the intermediate for the dyes. In that, today we are going to study the preparation of the selected intermediates. The selected intermediates are useful for the preparation of the dyes. How selected intermediate can be prepared? So these intermediate are broadly classified into the three reactants, important reactant part. That is, one is the benzenoid reactant, second is the naphthalene reactants, and third one is the phenanthrene types of the reactants, anthraquinone types of the reactants. So these are the starting materials. To this starting material, we have to add the some of the oxochromic group or the orthoparadirecting or the meta-directing groups, and that will be act as the intermediate for the preparation of the intermediate for the preparation of the dyes. So in this category we start the first, that is the benzene derivatives. So in the benzene derivative, the first is the benzene sulfonic acids. We have studied the how to prepare the benzene sulfonic acid from the benzene. For that purpose, we use the reagent that is the sulfuric acid S2SO4, and temperature condition is important in this case, that is the 40 to 45 degrees centigrade. So we will get the benzene sulfonic acid. Second, if we require the benzene sulfonic acid at the meta positions of the one another. At that times, we take the starting material as the benzene sulfonic acid and use the reagent that is the sulfuric acid along with the 65% oleum, that is the 80 degrees centigrade. This reaction is to be operated for the 3 hours, and then we will get the products, okay, that is the benzene 1,3-disulfonic acids. These two sulfonic acids are the meta to one another. The 1,3-disulfonic acid as the products. Next, the sulfanilic acid. For the sulfanilic acids, we require the aniline as a starting materials, and to this aniline part, we are adding the concentrated H2SO4s. So the reagent is in this reaction is the concentrated H2SO4. We know that the NH2 groups having the lone pair of the electrons. So it abstract the one of the proton of the sulfuric acid and become the NH3 plus. And another is the HSO4 minus is a negative ion. Cation anionic solution is formed. That is aniline bisulfate ion is formed. Which on the reaction side, the temperature of the 260 degrees centigrade to 280 degrees centigrade. The removal of water molecules here and the formation of bond between nitrogen and sulfur atoms, and we will get the phenyl sulfamic acids. But this is not a stable products. Rearrangement takes place, and this sulfanilic acid from nitrogen atom shifted to the para position of the aniline. In this way, the reaction of sulfanilic acid is formed. Is the nitrochlorobenzene preparations. So for this intermediate, you have to take the chlorobenzene as the reacting materials. So can we, any of you, can you tell me the chlorobenzene is the orthopara directing or the meta directing groups?
कोई आप में से बता सकता है कि क्लोरोबेंजीन जो है उसमें अगर जो हमने नाइट्रो ग्रुप ऐड किए तो नाइट्रो ग्रुप क्लोरोबेंजीन में कहाँ यानी ऑर्थो पैरा पे जाएगा या मेटा पे जाएगा? ऑर्थो पैरा पे जाएगा। ओके, बिकॉज डिपेंड क्या करता है इसके अंदर कि क्लोरीन कौन सा डायरेक्टिंग ग्रुप से, जो टाइप्स का डायरेक्टिंग ग्रुप्स रहेगा उस पर डिपेंड करता है कि वो ग्रुप कहाँ पे जाके ऐड होगा। ओके, तो हमको तो पता है कि नाइट्रेशन के लिए हम क्या यूज करते हैं, नाइट्रेटिंग मिक्सचर। ओके, अब नाइट्रेटिंग मिक्सचर क्या है हमारे पास, concentrated H2SO4 and the concentrated HNO3 is the well known nitrating mixture। इसके थ्रू हम जो है NO2 को ऐड कर ले। अब इसका खुद का जो है क्लोरोबेंजीन का एक्टिव जो है एप्टीट्यूड है खुद का उसका, अब वो उसके थ्रू वो ऐड करेंगे एक तो आर्थो पे या फिर पैरा पोजीशन पे, तो हमको दो प्रोडक्ट मिलेंगे। मैक्सिमम प्रोडक्ट विल बी एट द पैरा पोजीशन, दैट इज 66%, and 34% at the ortho position. So in this way we can form the compounds with the nitrochlorobenzene as the intermediate. Okay, नेक्स्ट मेथड भी है तैयार करने की। तो नेक्स्ट मेथड ये है कि आप चाहे तो रिएक्टिंग मटेरियल को चेंज कर सकते, आप नाइट्रोबेंजीन ले सकते और नाइट्रोबेंजीन का अगर जो क्लोरीनेशन करेंगे तो भी आपको नाइट्रोक्लोरोबेंजीन मिल सकता। लेकिन हमको यहाँ पे पता है कि नाइट्रोबेंजीन जो है वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो हमको अगर जो मेटा पे प्रोडक्ट चाहिए, हमको दो, देखिए अब हमने पहले क्या किए, क्लोरोबेंजीन लिए और उस पर नाइट्रेशन किए तो प्रोडक्ट हमको पैरा पे मिला, ऑर्थो पैरा पे। अगर जो हमको प्रोडक्ट चाहिए मेटा पे तो हमको क्या करना पड़ेगा, स्टार्टिंग मटेरियल नाइट्रोबेंजीन लेना पड़ेगा। इफ यू टेक द नाइट्रोबेंजीन एज अ स्टार्टिंग मटेरियल then the substitution will be takes place at the meta position। तो कब रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमको रिएक्टेड मटेरियल लेना पड़ेगा, जैसी रिक्वायरमेंट रहेंगे वैसा स्टार्टिंग मटेरियल हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्लोरीन जाएगा फिर मेटा पोजीशन पे, Cl2, Cl2 को हेल्प करने के लिए यहाँ पे क्या है, FeCl3 एज अ स्टार्टिंग मटेरियल्स। ओके, एज अ रिएजेंट यहाँ पे यूज करेंगे। It will be facilitate the breakage of the Cl2 bonds। So in this way we will get the products of the nitrochlorobenzenes। नाइट्रोएनिलीन, अब एनिलीन अगर जो हमको ऐड करना है, सॉरी हमको नाइट्रो ग्रुप ऐड करना है तो स्टार्टिंग मटेरियल हम एनिलीन लेंगे। अब नाइट्रो कहाँ पे ऐड करना है एनिलीन के, डिपेंड करता है कि इसका एप्टीट्यूड क्या है। अब ये कहाँ पे फेवरेबल पोजीशन पे शो करता है सब्स्टिट्यूशन, तो हमको पता है एनिलीन हमेशा आर्थो और पैरा पोजीशन सब्स्टिट्यूशन शो करता है। तो NO2 ग्रुप ऐड करने के लिए यहाँ पर जो रिएजेंट यूज किया है वो एसिटिक एनहाइड्राइड अलॉन्ग विद द कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। तो सब्स्टिट्यूशंस पहले कंडीशन में तो सबसे पहले कहाँ पे हो जाएगा, नाइट्रोजन पे हो जाएगा। अगर जो NH2 को आप प्रोटेक्ट नहीं करते तो रिएक्शन सबसे पहले NH2 पे ही होती है, इसलिए बहुत से टाइम उसको प्रोटेक्ट करना पड़ता है। तो प्रोटेक्ट किया हम एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। ओके, तो प्रोडक्ट कहाँ पे गया, पैरा पोजीशन पे NO2 फॉर्म हुआ। अब वो जो एसिटिक एनहाइड्राइड जो नाइट्रोजन के साथ तैयार हुआ है उसको डी प्रोटेक्ट करने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH एज अ रिएजेंट हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो वो रिमूव हो गया, वापस से NH2 यानी पैरा पोजीशन पे आपको क्या मिल गया, नाइट्रो ग्रुप्स पैरा पोजीशन पे मिल गया। तो पैरा नाइट्रो एनिलीन एज आपका प्रोडक्ट तैयार हो गया। नेक्स्ट है आप उसी तरह से आर्थो पे भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन में आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो 70% नाइट्रो पे मिलेगा और 30% आपको जो है आर्थो पोजीशन पे आपको। आप देखिए आपके पास अगर जो डायनाइट्रोबेंजीन है, मेटा डायनाइट्रोबेंजीन है, अगर जो उसका कन्वर्जन आपको नाइट्रो एनिलीन में करना है, ओके, तो आपको क्या चाहिए, सिलेक्टिव केमो सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए, यानी दोनों में से सिर्फ एक को आपको रिडक्शन करना है, दोनों भी नहीं करना है।
तो एट दैट टाइम NH4SH, ओके, NH4SH ये जो एजेंट है Na, क्या है ये? सोडियम बाइसल्फाइड। तो इसको जो यूज करेंगे, ओके, सॉरी, NH4OH अलॉन्ग विद द सोडियम हाइड्रोक्साइड हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो ये जो एजेंट है ये सिलेक्टिव, केमो सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट्स है। दोनों में से सिर्फ एक को ही रिड्यूस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? मेटा नाइट्रो एनिलीन एज द प्रोडक्ट, इंटरमीडिएट के लिए यूज कर सकते हैं हम इसको। अब नेक्स्ट है आर्थो मेटा पैरा फिनिलीन डायमाइंस। अभी दोनों को भी अगर रिडक्शन करना है, यानी हमारे पास मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन है, अब मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन को दोनों को भी हमको रिड्यूस करना है, तो हम क्या करेंगे? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे। यहाँ पे हम केमो सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट यूज नहीं करेंगे, हम यूज करेंगे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। अब स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेंगे? दोनों का भी NH2 का, NO2 का रिडक्शन करेंगे। दैट इज बोथ द मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन्स, दो बोथ द मेटा डाइनाइट्रो ग्रुप्स विल बी रिड्यूस इनटू द NH2 ग्रुप्स। आपको क्या मिलेगा फिर? मेटा, ओके। तो ये एनिलीन टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट है। एनिलीन टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट आपको जो है मेटा पोजीशन पे दो नाइट्रो ग्रुप्स का क्या हो जाएगा? फिर कन्वर्जन हो जाएगा, ओके। तो इस तरह के जो पैरा नाइट्रो क्या हो जाएगा फिर कन्वर्जन? पैरा नाइट्रो एनिलीन आर रिड्यूस्ड बाय यूजिंग द डाइल्यूट एसिड्स, ओके, और इसका कन्वर्जन हो जाएगा आर्थोफिनिलीन डायमाइन के अंदर। तो इस तरह से आपको सिलेक्टिविटी के डिपेंड करती है कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, उसके हिसाब से आप वहाँ पे रिएजेंट यूज करते हैं। देखिए यहाँ पर एक रिएक्टेंट दिया वाला है आर्थो नाइट्रो एनिलीन, ओके, और पैरा नाइट्रो एनिलीन। दोनों का भी रिडक्शन करना है आपको, दोनों के अंदर NO2 ग्रुप है, रिडक्शन करना है तो आप फेरस के साथ यूज करेंगे। फेरस इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट इन द एसिडिक मीडियम अलॉन्ग विद द प्रोटॉन्स को अवेलेबल करके दे रहे हैं 6 हाइड्रोजन्स। इसका कन्वर्जन हो जाएगा फिर आर्थोफिनिलीन डायमाइन और पैराफिनिलीन डायमाइन के अंदर इसका कन्वर्जन हो जाएगा। नेक्स्ट है नेप्थॉल। अभी नेप्थॉल आपको पता है, नेप्थॉल का आपको फॉर्मेशन अगर जो करना है तो नेप्थॉल के अंदर क्या होते हैं? कितने बेंजीन ग्रुप्स होते हैं? बोलिए। दो बेंजीन रिंग होते हैं उसके अंदर, ओके। तो उसका नेप्थॉल ASG का अगर जो प्रिपरेशन करना है आपको, तो आपको क्या करना पड़ेगा फिर? ऑर्थोनाइट्रोटोलिन इज रिड्यूस विद द जिंक, ओके। ऑर्थोनाइट्रोटोलिन को जो क्या करना पड़ेगा? आपको रिड्यूस करना पड़ेगा एंड द अल्कली टू गेट द हाइड्रोबेंजीन्स। दिस ऑन हिटिंग विद द HCl undergoes the benzene rearrangement to give the benzidimine derivative. Further treatment with the two molecule of acetoacetic ester naphthol ASG is obtained. तो नेप्थॉल ASG का स्ट्रक्चर इस तरह से है, बल्कि मॉलिक्यूल है, ओके। नेक्स्ट है, अब ये सारे थे बेंजीन से स्टार्ट होने वाले बेंजीन इंटरमीडिएट्स। अब नेक्स्ट है नेप्थलीन डेरिवेटिव्स। नेप्थलीन का डेरिवेटिव्स के साथ तैयार करेंगे। तो शेफ्स एसिड फर्स्ट क्या तैयार करेंगे अपन? शेफर्स एसिड। अब इसको तैयार करने के लिए हम स्टार्टिंग मटेरियल जो लेंगे वो नेप्थॉल लेंगे, ओके। तो 2 नेप्थॉल बीटा नेप्थॉल हम यूज करेंगे। इसके रिएक्शन एसिड के साथ करेंगे, इंटरमीडिएट मिलेगा ऑक्सी टोबेस एसिड, इसको हीट करेंगे तो वहां पर से जो है SO3H ग्रुप जो था वो शिफ्ट होके OH के अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, तो हमको शेफर एसिड एज अ फाइनल प्रोडक्ट हमको मिलेगा। नेक्स्ट टोबियास एसिड। अब टोबियास एसिड चाहिए आपको, तो फिर स्टार्टिंग मटेरियल आपको क्या लेना पड़ेगा? नेप्थॉल 1 सल्फोनिक एसिड एज द स्टार्टिंग मटेरियल्स, ओके। उसके बाद में आपको रिएक्शन करना पड़ेगा वहाँ पे नाइट्रेट अमाइनेटिंग मिक्सचर के साथ, ओके। अमाइनेटिंग मिक्सचर यहाँ पे क्या है? अमोनियम सल्फेट इज द अमाइनेटिंग मिक्सचर। टेम्परेचर कंडीशन एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर रिएक्शन हो
आपका OH ग्रुप जो है रिप्लेस हो जाएगा NH2 के साथ, और टोबियास एसिड एज ए प्रोडक्ट। नेक्स्ट इज द नेप्थियोनिक एसिड। अब क्या होता है, अल्फा नेप्थैलिक अमाइन इज ट्रीटेड, अल्फा नेप्थिल अमाइन इज ट्रीटेड concentrated sulfuric acid, alpha naphthylamine treated sulfuric acid to get the sulfate। हमने ये रिएक्शन देखी है किस तरह से, अगर जो NH2 ग्रुप को H2SO4 के साथ रिएक्ट होता है, सबसे पहले NH2 ग्रुप का प्रोटोनेशन होता है, उसके बाद फिर फर्दर रिएक्शन उसकी होती है। तो लास्ट में हमको क्या मिलेगा, फिर उसके पैरा पोजीशन पे जाएगा तो हमको नेप्थियोनिक एसिड एज ए फाइनल प्रोडक्ट हमको मिलेगा। नाम थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा आपको। उसके बाद नेविल विंथर्स एसिड। अब ये नेप्थियोनिक एसिड एज अ स्टार्टिंग मटेरियल यूज करेंगे यहाँ पे। उसकी रिएक्शन अगर जो हम सोडियम बाय सल्फेट, उसके साथ एक्वियस मीडियम के साथ अगर जो हम रिएक्शन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक सॉल्वेंट सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो आपको क्या मिलेगा, 1 नेप्थॉल 4 सल्फोनिक एसिड एज अ प्रोडक्ट। उसके बाद एक क्लेव एसिड। अब क्लेव एसिड कौन सा होता है, क्लेव में दो आते हैं, क्लेव 6 एसिड और क्लेव 7 एसिड। ओके, क्लेव एसिड मीन्स आपको स्टार्टिंग मटेरियल क्या लेना पड़ेगा, फिर नेप्थैलिन 2 सल्फोनिक एसिड एज अ स्टार्टिंग मटेरियल आपको लेना पड़ेगा, और उसके ऊपर NO2 ग्रुप को आपको ऐड करना है। तो NO2 ग्रुप दो कंडीशन में ऐड होगा। ओके, दो अलग अलग कंडीशन में ऐड होगा, तो वो दो कंडीशन में आपको दो प्रोडक्ट मिलेंगे। ओके, एक पे 6 सल्फोनिक एसिड मिलेगा, दूसरे पे 7 सल्फोनिक एसिड। तो 6 उसको नाम देंगे फिर हम क्लेव 6 एसिड और क्लेव 7 एसिड एज अ प्रोडक्ट। उसके बाद नेक्स्ट हम जो डेरिवेटिव तैयार करेंगे नेप्थैलिन का, दैट इज 6 एसिड। अब 6 एसिड जो H एसिड है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 8 अमाइनो 1 नेप्थॉल 3 6 डाइसल्फोनिक एसिड एज अ प्रोडक्ट हमको एज अ डेरिवेटिव हमको तैयार करना है। तो इसमें हम नेप्थैलिन एज अ स्टार्टिंग मटेरियल हम लेंगे। ओके, अब ये स्टार्टिंग मटेरियल को क्या करेंगे, किसके साथ रिएक्ट करेंगे, दिस स्टार्टिंग मटेरियल इज रिएक्टेड विद द ओलियम। हमको पता है ओलियम सल्फोनेशन के लिए यूज करते हैं अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन के अंदर। तो यहाँ पे 30% पोटेंसी के साथ हमने यूज किया है, तो ये यूज करेंगे तो वो जाएगा कहाँ पर, एक दूसरे के पैरा पोजिशन पे। तो इस तरह से हम कॉन्सेंट्रेटेड H2HNO3 की रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ करेंगे, और हमको जो है यहाँ पर मल्टी सल्फोनेशन एज अ प्रोडक्ट मिलेगा, जिसके फाइनलाइज हम जो है NaOH के सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमको H एसिड एज अ प्रोडक्ट मिलेगा। तो इसके अंदर देखिए 3 फंक्शनल ग्रुप ऐड हो जाते हैं, एक है हाइड्रोक्सी ग्रुप, एक अमाइनो ग्रुप और एक सल्फोनिक ग्रुप। 3 जो दो ग्रुप है फंक्शनल ग्रुप ऐड हुए हैं, इसको बोल रहे हैं हम H एसिड। नेक्स्ट है नेप्थॉल AS। नेप्थॉल AS का हमने देखे हैं किस तरह से तैयार करेंगे। ओके, उसके बाद है एंथ्रासिन डेरिवेटिव। एंथ्रासिन डेरिवेटिव, दिस इज द लास्ट कैटेगरी ऑफ द इंटरमीडिएट फॉर्म प्रिपरेशन, डेरिवेटिव प्रिपरेशंस। तो एंथ्रासिन का स्ट्रक्चर हमको पता है, तो एंथ्रासिन के स्ट्रक्चर का यूज करके हम जो है उसके अलग अलग डेरिवेटिव्स तैयार करेंगे। जैसा कि हम स्टार्टिंग मटेरियल यहाँ पे यूज करेंगे 1 नाइट्रो एंथ्राक्विनोन हमको बनाना है। तो 1 नाइट्रो एंथ्राक्विनोन अगर जो हमको बनाना है तो नाइट्रेशन करना पड़ेगा, रिएजेंट तो सेम रहेगा। एप्टीट्यूड के हिसाब से वो यहाँ पे 1 नाइट्रो एंथ्राक्विनोन 1 पोजीशन पे NO2 ग्रुप ऐड होके प्रोडक्ट तैयार होगा। सेकंड आपको तैयार करना है 2 पोजीशन वाला, दैट इज द एंथ्राक्विनोन 2 सल्फोनिक एसिड। अब सल्फोनिक एसिड के लिए हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, सल्फोनेटिंग एजेंट। ओलियम इज द बेस्ट सल्फोनेटिंग एजेंट, यहाँ पे हम 20% वाला यूज करेंगे। तो क्या करेंगे, एंथ्राक्विनोन 2 सल्फोनिक एसिड एज अ प्रोडक्ट हमारा तैयार होगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, 1 अमाइनो एंथ्राक्विनोन चाहिए हमको, तो अमाइनो ग्रुप ऐड करने के लिए सिंपली हम क्या करेंगे, जो प्रोडक्ट तैयार हुआ है
1 नाइट्रो एंथ्राक्विनोन, उसका रिडक्शन करेंगे सिंपली। रिडक्शन करने के बाद उसका कन्वर्जन NO2 का NH2 के अंदर। तो स्टार्टिंग मटेरियल हमको याद होना चाहिए। हमको तैयार करना है बेंजाथ्रोन। के लिए हमको क्या लगेगा, एक्रोलीन लगेगा। ओके, H2SO4 की रिएक्शन है, एक्रोलीन एज ए इंटरमीडिएट लगेगा। तो उसको हम तैयार किससे करेंगे, ग्लाइसरॉल से करेंगे। फिर रिएक्शन स्टार्ट करेंगे। ओके, तो स्टार्टिंग में हम क्या रिएजेंट यूज करेंगे, फेरस रिड्यूसिंग एजेंट अलॉन्ग विद द एसिडिक मीडियम। इसका रिडक्शन हो जाएगा, 1 कार्बोनिल ग्रुप का एंथ्रोन बन जाएगा। साथ करेंगे तो हमको रिंग स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होगा। लास्ट में हमको क्या मिलेगा, बेंजाथ्रोन एज अ प्रोडक्ट। ओके, एसिडिक कंडीशन में और ऑक्सीडेशन के बाद फाइनल प्रोडक्ट जो मिलेगा दैट इज अ बेंजाथ्रोन एज अ प्रोडक्ट। तो इस तरह से रिएक्शंस का पार्ट था, तकरीबन पार्ट्स